بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ فصل الاستقراء والحکم علی کل بتتبع اکثر الجزئیات. چلیں جی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حجت کی تین قسمیں. حجت کی تین قسم کل بخائیاں سن کیڑی؟ قیاس. استقراء تمثیل. قیاس آ گیا ہے. جی قیاس آ گیا ہے. قیاس ایسا قول مرکب ہوتا ہے کہ جس کو مانے تو خام خواہ قول اور لازم آتا ہے. پھر اگوں دی تفصیل ہے. اقترانی، استثنائی. اقترانی دیاں چار شکلاں بنیاں، پھر ضرباں، پھر منتجہ، شرطیں ساری. اب حجت کی دوسری قسم شروع ہے. کون؟ استقراء کی استقراء. تعریف جی. ویسے لفظ استقراء تتبع تلاش، کیا؟ تتبع تلاش. کھڑیچی شے نو لبنا. جی استقراء کیا ہوتا ہے؟ حکم کرنا کل پر، مراد کلی پر. حکم کرنا کل پر اکثر جزیات کے تتبع کے ساتھ. ایک کلی ہے، جی اون دے تھلے نے افراد. جی اسی لبدے رہے جنوں لبیا اون دے وچ ایک وصف پائی گئی. دوجے وچ بھی ہو، تریجے وچ بھی، چوتھے وچ بھی، پنجویں وچ بھی. اسی لبدے رہے جیڑا لبا اون دے وچ وصف پائی گئی. اخیری اساں آکھیا اس کلی دے سارے فرد ایویں دے نے. اس کلی دے پچھ بڑے سے نا بھی جزی کا حکم لگانا کلی پر. بس جزیات نو ویکھ کے تے قاعدہ کلیہ بنانا کہ چونکہ چوکھے فرد جڑے اساں لبے نے انج دے نے، لہذا اس کلی دے سارے فرد ہی انج دے نے. اس کلی دے سارے ہی فرد ہیں. سمجھ آ گئی جی. میں تعریف کر کے آکھے جی. استقراء توجہ کرا جی. وہ پلے وہ بڑے کم دی گل جی. وہ استقراء حکم کرنا کل پر، کرنا کل پر. مراد کلی پر. استقراء حکم کرنا کلی پر اکثر جزیات کے تلاش کرنے کے تتبع کے ساتھ. جی. اکثر جزیات کے تتبع کے ساتھ. کی مطلب ایک کلی ہے، جی اس کے افراد ہیں. ہم نے اس کے افراد کو دیکھا. جی. اس کی بھی ٹوپی چٹی، اس کی بھی چٹی، اس کی بھی ٹوپی چٹی، وہ بھی ویکھے اون دی بھی چٹی، اون دی ٹوپی چٹی، اون دی ٹوپی چٹی، اون دی ٹوپی چٹی. اسا آخر دے آکھے بھی اس کلی دے سارے افراد دی ٹوپیاں چٹی. سمجھ آ گئی؟ اے مثال. جی تو اکثر جزیات کو دیکھا تو کلی پر کیا کر دیا؟ حکم جاری کر دیا کہ یہ ایسا ہی ہے جی. استقراء وہ حکم کرنا کل پر، یعنی کلی پر اکثر جزیات کے تتبع کے ساتھ. بے جدو اکثر انج دینے تو سارے جزیات ایویں دینے. جدو سارے ایویں دینے تو حکم کلی تے لگ گیا بھی کلی ساری ایویں دی. جی استقراء وہ حکم کرنا کل پر اکثر جزیات کے تتبع کے ساتھ. استعاشہ نمبر لگا 4. یہ پورا جلے پڑھ لوں گا تو میں نے یاد کریں، پھر پڑھنا ہے پھر سمجھ آوے گا. اور نہیں سمجھ آوے بڑا ضروری مطلب بھول جائیں. جزیات کے تتبع کے ساتھ. اچھا بس ٹورنا. قولنا كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ لأن استقرينا تتبعنا الإنسان والفرس والبعير والحمير والطيور والسباع فوجدنا كلها كذلك فحكمنا بعد تتبع هذه الجزئيات المستقريات أن كل حیوان يحرك فكه الاسفل عند المضغ. بس توجہ ہے. مثال دیں دینے. اب مشہور مثال بھائی، ہم نے انسان کو دیکھا کھاتے وقت او نچلا جبڑا ہلتا ہے تو ہاتھ رکھ کے ویکھ لا، اتلا اتنے ہی رہندا ہے. اساں مجھ نو ویکھیا، کھوتے نو، کوڑے نو، پرندیاں نو، ہر شے نو. شد ویکھو انہاں دا ایتھے جوڑ تھلے ہے.
ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ, जी ਇਹ ਉਤਲੇ ਜਬੜੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, जी ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਲੇ जी ਥੱਲੇ ਹਲਦਾ ਹੈ। जी ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਲੂ ਹਯਵਾਨਨ युहर्रिकु फक्कहु लस्फल इंदल मज़ग़ि, जी चबाने के वक़्त हर हैवान निचला जबड़े को हरकत देता है। समझिया? ऐ शाबाशी क्या आख्या जी? साल इस्तिक़रा की जैसे इंसान और फरस हमने जिस जिस चीज़ को देखा ना वो खाने के वक़्त क्या हिलाती है, निचला जबड़ा हिलाते हैं। वो इतने थले जोड़े उत्ते नहीं हैगा जी। जी। तो हमने हैवान के जो हर फर्द पर यह हुक्म लगा दिया कि हैवान का हर फर्द खाते वक्त निचले जबड़े को हिलाता है, निचले जबड़े को जबले को हिलाता है, ऐसा हुक्म कर देता। जी। जैसे हमारा कौल जैसे हमारा कौल कुल्लु हयवानिन युहर्रिकु फक्कहु लस्फल इंदल मज़ग़ि, कुल्लु हैवानिन युहर्रिकु फक्कहु युहर्रिकु यार पिछे मिसाल एक बारी उस आई होंदे जी सगोजी च दूजी बारी काल कूल च आई सारियां यार मिसालां इनको नवीं बन गई। पिछले 3 किताबों च फारसी च मिसालां आईयां ने यार हद हो गई। हाँ कुल्लु हैवान जैसे हमारा कौल, जैसे हमारा कौल बोलो ना मैं मना कर देते हैं ना। कुल्लु हैवानिन युहर्रिकु फक्कहु अस्फल इंदल मज़ग़ि, इसलिए कि इसलिए कि हमने इस्तिक़रा किया। इस्तिक़रा तो किया, इस्तिक़रा दा शायद भी माना औखा होवे, यानी हमने ततब्बो किया यानी हमने ततब्बो किया इंसान का इंसान का और फरस का, और फरस का, ऊँट का, ऊँट का, खोते का, खोते का, परिंदों का, परिंदों का, दरिंदों का, दरिंदों का, हमने पाया सबको इसी तरह हमने पाया सबको इसी तरह भी कर दिन खान दे वक्त निचला जबड़ा हिलाने ने। बस हुक्म किया हमने बस हुक्म किया हमने इन इन तलाश की हुई जुजियात के ततब्बो के बाद तलाश की हुई जुज़ियात के ततब्बो के बाद क्या हुक्म किया कि हर हैवान हर हैवान युहर्रिकु फक्कहु अस्फल इंदल मज़ग़ि, युहर्रिकु फक्कहु अस्फल इंदल मज़ग़ि, जी जैसे हमारा कौल कुल्लु हैवानिन युहर्रिकु फक्कहु अस्फल इंदल मज़ग़ि। इंदा माना होंदा है जी जी जी। त्रै बारी पकवाना अगली बारी लफ्ज़ पढ़ लवां तो कोई गुजारा हो जाए जी। इसलिए कि हमने इस्तिक़रा किया यानी हमने तलाश- ततब्बो किया। इंसान और फरस और ऊँट, और गधे, और तुयूर और परिंदे, गधे, दरिंदे बस पाया हमने सबको इसी तरह बस हुक्म लगाया हम लगा दिया हमने बस हुक्म लगा दिया हमने इन तलाश की हुई तलाश की हुई जुजियात के ततब्बो के बाद मुस्तक़रा या तलाश की हुई ये कि हर हैवान हरकत देता है अपने निचले जबड़े को चबाने के वक़्त, ऐसा हुक्म ला। जी मसला वल इस्तिक़रा वल-इस्तिक़राउ ला युफीदुल यकीना व इन्नमा यहसुलु ज़न्नुल गालिबु। हुण अगे पढ़ ले जवाज़ जवाज़ी अल्ला यकूना जमीउ अफ़रादि हाज़ल कुल्ली बिहाज़िहिल हालति कमा कमा युक़ाल युक़ालु इन्ना तिमसाह लैसा अला हाज़िहि सिफ़ाति बल युहर्रिकु फ़क्कहुल आला। हुण सुनिया जे जरा गौर करो ना, असां कुल्ली दे जुजियात तलाश कीते जी ਜਿਹੜੇ ਲੱਭੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤੇ जी ਅਸਾਂ ਪੂਰੀ ਕੁੱਲੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ। जी ਪੂਰੀ कुल्ली ते हुक्म लाया। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਕੁੱਲੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ जी ਬਈ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇ। ਦਿਮਾਗ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੰਨੀ, ਪੁੱਛੋ ਦਿਮਾਗ ਕੋਲ, ज़न्नी ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਜੇ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਜ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ। जी ए मतलब जे कि इस्तिक़रा मुफीदे यकीन नहीं होता बल्कि मुफीदे ज़न होता है। इस्तिक़रा मुफीद यकीन नहीं होता बल्कि मुफीद ज़न होता है। इस्तिक़रा मुफीद यकीन नहीं होता बल्कि मुफीद ज़न होता है। बच्चों के मौलवी जी सारे नहीं लभे, जी चोखियां नूं वेख्या ते कुल्ली जिहड़ा हुक्म जारी कीता है। जी कुल्ली ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇ। जी ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨੀ? ਅਕਲ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕੋ ਭਲਾ। ज़न्नी
ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ? ਜ਼ੰਨੀ ਨਾ ਬੇ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਚੋਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਏ ਜਾਇਜ਼ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਜਾਨਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਮਰਜੂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ੰਨੀ ਜ਼ਨ। ਉਹ ਜਾਨਬ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਸਲੀਓ। तो ये मतलब है कि इस्तिकरा क्या होता है? मुफीद ज़न। बोलो चाह इस्तिकरा जो है मुफीद यकीन नहीं होता बल्कि मुफीद ज़न होता है। बे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿੱਲ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਖੇ ਜੁਜ਼ੀਆਤ ਲੱਭੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਛੱਛ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਛਾਛੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5-7 ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦਰਿਆ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਮਝਦੇ ਪਿਓ ਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲੀ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਮੌਲਵੀ ਜੀ, ਕੁੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਬੜਾ ਲਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਖੋਤਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਬੜਾ ਲਾਂਦਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਮੱਝ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲੀ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੈਵਾਨ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਲੀ ਅਬਦੁਲ ਜਲੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਲੱਭਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਤਕਰਾ क्या होता है? मुफीद ज़न होता है। इस्तकरा मुफीद ज़न होता है ना कि मुफीद यकीन। इस्तकरा मुफीद ज़न होता है ना कि मुफीद यकीन। और इस्तकरा और इस्तिकरा नहीं फायदा देता यकीन का, फायदा देता यकीन का। बाज़ हासिल होता है जन गालिब। बाद हासिल होता है ज़न गालिब। ਉਹ ਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾਲਿਬ ਉਹ ਨਾਲ ਲਾਈਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਵੀ ਮੁਫੀਦ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਲੀਲ वास्ते जायज़ होने इस बात के, वास्ते जायज़ होने इस बात ये कि ना हों ये कि ना हो सारे अफराद इस कुल्ली के। सारे अफराद इस कुल्ली ਉਹ ਜਿਸ ਕੁੱਲੀ ਦਾ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਸਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੱਲੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਕੇ ਸਾਥ हालत के ਵੀ साथ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੁੱਲੀ ਤੇ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੀ ਨੇ ਜੈਸਾ ਕਿ ਕਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ जैसा कि कहा जाता है मगरमच्छ मगरमच्छ नहीं है नहीं है इस सिफ्त पर, इस सिफत से, बल्कि वो हरकत देता है कि वो हरकत देता है अपने ऊपर वाले जबड़े को। अपने ऊपर वाले झगड़े को। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਰਸ਼ੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਗਾਂ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਬੜਾ ਹੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਬੜਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਤਲਾ ਜਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਸ਼ੈ ਫੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਦਬੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ जी ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੈ ਵੀ ਡਿੱਗਣੀ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਤਲਾ ਹਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਮਰਾ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਮਗਰਮੱਛ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੇਂਦਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵੇਂਦਾ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਕਿੰਦੀ? मगरमच्छ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਚਫੇਰੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਚਫੇਰੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਚਫੇਰੇ ਫਿਰਦੀ ਜੇ ਜੀ। ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ, ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਵੇਂਦਾ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ, ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਪੂਰੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੈ ਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਫਿਰ ਕੁੱਲੀ ਨਾ ਬਣੀ, जी ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਲੀਆ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ।
منع کرو یار. اور استقرار نہیں فائدہ دیتا یقین کا، اور محض حاصل ہوتا ہے ظن اکثر. واسطے جائز ہونے اس بات کے کہ نہ ہو جمیع افراد اس کلی کے اس حالت کے ساتھ، جیسا کہ کہا گیا ہے مگرمچھ نہیں ہے اس صفت پر بلکہ حرکت دیتا ہے اپنے اوپر والے جبڑے. ادھر ویکھو واپس آ جڑا کسی آشیا جی اور دھیان کرے جی. استقرا دو قسم ہوندا جی کہ استقرار دو قسم، ہن اے گل پکانی جی. استقرا دو قسم. ایک استقرا تام تے ایک استقرا غیر تام. کیا کہ جی استقرار دو قسم پر ہے، استقرار تام، استقرار غیر تام. اچھی بول. استقرار دو قسم پر ہے، استقرار تام اور استقرار غیر تام. استقرا تام یہ ہے کہ ہم کسی کلی کے سارے جزیات کا احاطہ کر لیں. جی کسی کلی کے سارے پیچھے کوئی بھی نہ بچے. جی پیچھے کوئی بھی نہ بچے. یہ جو استقرا ہے وہ ہوا یفید الیقین. جی یہ استقرا مفید یقین ہے. جی یہ استقرا مفید یقین ہے. کیونکہ جدو پیچھے کوئی شے بچی نہیں تو لے جواز والی گل ہی ختم ہو گئی بھی جائز ہے کہ ایسا نہ ہو. کوئی فرد ہوئے گا تو جائز ہی ہونا ہے. جب سارے افراد کا احاطہ ہو جائے تو مفید یقین. مثال ویکھو ہر جسم یا جماد ہے یا حیوان ہے یا نباتات ہے. جی جسم سارے یا پتھر نے یا حیوان نے جی یا درخت کا شاہ نے. سمجھ آئیے جی جسم سارے تینوں چ بند نے جی اور ہر ایک ان میں سے متحیز بھی ہے. ہر ایک ان میں سے متحیز بھی ہے. متحیز حیز بھی ہر شے اے جننے بھی ہیں انہاں وچ اس تو کوئی اتے کوئی تھلے کوئی سجے کھبے اگے پیچھے جہاتے ستا جی جن دے وچ جہاتے ستا نکل سکن انہوں آندے نے متحیز. کی آندے نے متحیز. ویسے حیز ہوندا ہے مکان. تو تے بیٹھا ہے نا اے بیٹھا ہے تو پورا تیرے اتے سجے کھبے اگے پیچھے خلا ہے نا خالی کہ کوئی نہیں. وہ فلسفی آندے نے یہ سارا مکان ہے ان دے وچ بڑے ہے کون وفا. سمجھ آئیے تو جن دے وچ بڑے وہ دا حیز ہے جی. لیکن چلو انہوں چھڈو بھی شاید نظر کو نہیں آتی چھڈو انہوں. اے گل تسی سمجھو بھی جن دے وچ چھ جیتا نکلن نا وہ کی ہوندا ہے جن دے وچ چھ جیتا نکلنا متحیز. وہ یار یہ کسی نے تعریف نہیں کی میں کر رہے یار. جنہیں پہلی بار کی تھی وہ بھی تو ساڈے جی سن. میں کوئی نوز باللہ کوئی انبیاء کرام علیہ السلام دے گل دے خلاف کو گل کر رہے ہیں. میں دونوں دے خلاف کر رہا ہوں بھی جنہیں گل کی تھی تو یار انہوں نے عقل سی سانوں بھی اللہ تعالیٰ عقل ہی دیتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے اندر کیا نکلیں وہ متحیز ہے. وہ متحیز ہے. لہٰذا جسم بند ہے کندے وچ جماعت وچ اے تین نے. جسم جڑا ہے نا اور طول عرض عمق اے یا اون دے وچ جڑا جماعت ہے روڑے بٹے گوگو یا جڑے زی روح نے تے یا جڑے درخت نے کہا نے ان سارے وچ طول عرض عمق ہے گئے جن دے وچ طول عرض عمق ہوے جسم ہوندا کو گجایا. تو ہر جسم یا کیا ہے یا جماد ہے یا حیوان ہے یا نبات ہے. تے ہر ایک ان میں سے کیا ہے اسا حیوان نو ویکھیا وہ بھی متحیز ہے نباتات نو ویکھیا وہ بھی. جسم دیاں صرف تین جزیاں نے کیڑے کیڑے جماد حیوان نبات. تے اسا انہاں تیناں نو جلے ویکھیا نا جزیاں لب گئیاں ساریاں اسا ویکھیا تے سارے متحیز نے سارے تے انہاں نو ویکھ کے تے کلی تے حکم لا دیتا کلو جسم متحیز. اے مفید یقین ہے اے مفید یقین ہے کیونکہ جسم دے سارے فرد اسا لب لے کنے تین تے تیناں نو کلیاں گلے ویکھیا ہر ایک متحیز. اسا ہن کلی تے حکم لا دیتا کہ اے مفید یقین ہے. کچھ شاید کو نہیں بچی. سنیں یا استقرا ہوتا ہے غیر تام اگر وہ نہ ہو حاصر ساری جزیات کو جس کو مصنف نے ذکر کیا جبڑے اعلان والی مثال یہ یقین کا مفید نہیں ہے. وہ سمجھ آ گئی جی
इस्तिकरा अगर ताम हो, सारे जुजियात घेरे में आ जाए, अब हुक्म कुल्ली ये यकीन है। और अगर सारे घेरे में ना आए, कुछ रह जाए, अब हुक्म कुल्ली ये जन है। ये जन है जो समझ आ गई जे। अगर टुरो पढ़े हो फसल जिसले लोड पे उसले फिर कोई पता लगना जी। फसल तो इस्तिकरा मुतलकन मुफीद जन नहीं है, जो इस्तिकरा नाकिस है, जो ताम है और जो मुफीद जन, जो इस्तिकरा नाकिस है वो मुफीद यकीन नहीं, मुफीद जन है। लेकिन जो इस्तिकरा ताम है वो मुफीद यकीन है। बाजो जी। फसल अत-तमसील व हुवा इस्बात हुक्म फी जुज़िय्यिन लिवजूदिही फी जुज़िय्यिन आखर मानन जामिइन मुश्तरकिन जामिअन मुश्तरकिन बैनहुमा कक़ौलिना अल आलम मुअल्लफुन फहुवा हादिसुन कल बैत। तवज्जो जी। हुज्जत की तीसरी किस्म है तमसील की। ये तमसील क्यों नहीं है? साबित करना हुक्म एक जुज़ी में बावजह पाए जाने हुक्म के एक और जुज़ी में। ए पहली विच साबित करना एक माने की वजह से, जो माना जामे है मुश्तरक है दोनों के दरमियान। ऐदे वेखा ऐस ऐस उंगली उते एक हुक्म लगा है, ऐस उंगली ते एक हुक्म लगा है। हुक्म लगा है, कोई हुक्म। उस हुक्म दी वजह की है, असां वजह लभ ले। असां वजह लब जिसले वजह लभी ना, फिर असां ए उंगली वेखी, इंदे विच भी वो वजह हैगी जो, इंदे विच भी वजह है भी। असां आख्या भी इंदे विच वजह होवे ते ये हुक्म लगदा है, ते ये वजह तां है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। लिहाजा ये हुक्म नूं आखो सरकार इदे भी शफकत फरमाओ, ए हुक्म चुक के इदे लै गए। समझ आई आ? हुण इदों वापस आउणा, हुण तारीफ लो वेखो, इहदे नाल मेरी उंगली वेख रखना है। साबित करना हुक्म का जी एक जुज़ी में बावजह पाए जाने हुक्म के दूसरी जुज़ी में। ये जो साबित करना है एक माने की वजह से, जो माना जामे है मुश्तरक है दोनों उंगलियों के दरमियान। कोई नहीं को खाने छुपे यो क्या से फिका हो सारा आशिया पढ़ने मैं एक जुज़ी उते हुक्म लगा है, उनके हुक्म दी इल्लत है, वो इल्लत जिथे पाएगी उथे भी हुक्म ला दिता। इनू की आंदे ने तमसील, की आंदे ने तमसील। हुण इरशाद फरमाओ जी क्या आखे? तमसील वो साबित करना, साबित करना एक हुक्म का जुज़ी में एक जुज़ी में बावजह पाए जाने हुक्म के दूसरी जुज़ी। दूसरी में तो हुक्म पहलो ऐसी, ओ हुक्म इस जुज़ी वाल भी लियाउणा क्यों? इन्हां विच रिश्ता है, ये आपस च कज़न लगदियां ने। माने की वजह से ऐसा माना जामे है जो मुश्तरक है उन दोनों के दरमियान, जो जामे है मुश्तरक है दोनों जुज़ियों के दरमियान। समझ आ गई? ये हुक्म लाना, एक जुज़ी वाला हुक्म लाना दूसरी जुज़ी ते, कि पहली जुज़ी दे हुक्म दी जेड़ी इल्लत ते सबब है वो दूजी विच भी है। ये हुक्म चुक के ओदे लिजाना, इनू की आंदे ने? इनू की आंदे ने? एक जुज़ी उते हुक्म लगा है पहलों, उनदे हुक्म दी एक इल्लत है, वो इल्लत लभ गई हुक्म क्यों लगा है, फिर वो इल्लत एक होर जगह ते भी हैगी है, ये हुक्म ओदे लेके जाना। इनू की आंदे ने? तमसील। इनू आंदे ने जुज़ी का हुक्म साबित करना जुज़ी के लिए। क्या करना? जुज़ी का हुक्म साबित करना जुज़ी के लिए। जुज़ी का हुक्म साबित करना जुज़ी के लिए। जुज़ी का हुक्म साबित करना जुज़ी के लिए। जुज़ी के लिए। ए जड़ी असां पहले जुज़ी दे हुक्म दी इल्लत लभी अपने टिल नाल, जायज़ है नफ्सुल अमर विच इल्लत ना होवे, कोई और होवे, जायज़ है कि नहीं? जायज़ है। इसे वजह ते कियास नाल जड़ा आगा हुक्म लजाईदा वो नहीं हुंदा जी कि जायज़ इस हुक्म दी इल्लत जड़ी लभी है ए ना होवे बल्कि कोई और होवे।
ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਆਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸਾਬਤ ਕਰੀਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਸ ਪਿਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੁਕਹਾ ਵਾਲਾ ਕਿਆਸ ਚੱਲਣਾ ਹੈ वो क्या ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जन्नी होता है ਜ਼ੰਨੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਆਸ ਦਲੀਲ ਜ਼ੰਨੀ ਹੈ। जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਆਸ दलील जन्नी है कियास दलील जन्नी दलील जन्नी है कि कियास के जरिए जो साबित किया जाता है वो यकीन नहीं होता बल्कि सन होता है क्योंकि ऐसा लब्बी ये इल्लत तो जायज़ है मौली काशिफ नफ्सुल अमर जो वो इल्लत ना होवे हुक्म दे कोई और इल्लत होवे जिथे जब जायज़ निकल आवे ना उथे दूजी जानब पाई गई है। जिथे मरजू पाया गया उथे दूजे पासे जन हुंदा यकीन नहीं हुंदा। कोई समझो भला हो जाए तमसील और वो कौन तफसील साबित करना साबित करना हुक्म का हुक्म का एक जुजी में जुज़ी में और दूसरी बावजह पाए जाने हुक्म के वजह पाए जाने हुक्म के दूसरी जुजी में भी हुक्म एक जुजी विच पाया गया तो हुक्म इस जुजी वाल ले आना लेकिन किमें बावजह एक माने के वजह एक माने के ऐसा माना ऐसा माना इस माना बना दी इल्लत जो जामे है जो जामे है मुश्तरक है मुश्तरक है दोनों जुजियों के दरमियान। दोनों जुज़ी के शाबाश शाबाश शाबाश। तमसील वो साबित करना हुक्म का एक जुज़ी में वास्ते पाए जाने उस हुक्म के दूसरी जुज़ी में बवजह एक माने के ऐसा माना जो जामे है मुश्तरक है उन दोनों जुज़ियों के दरमियान। जी वो साबित करना हुक्म को एक जुज़ी में बवजह पाए जाने उस हुक्म के दूसरी जुज़ी में एक माना ऐसा माना जो जामे है मुश्तरक है उन दो जुज़ियों के दरमियान। और आशय नंबर 2 वेखो मिसाल समझो अल बैतो हादिसुन अल बैतो हादिस बैत की है हादिस ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ जी ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹਾਦਿਸ ਹੈ ਲਿਆਨਾ ਮੁਅੱਲਫੁਨ ਇਹ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਮੁਰੱਕਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੁਰੱਕਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਦਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਸਨ ਤੇ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੈਤ ਕੀ ਹੈ हादिस है ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਤ हादिस है ਇਹਦੇ ਹਾਦਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ मुल्लफ है ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸਾਂ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਲਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨਾ हादिस है ਆਲਮ ਵੀ ਹਾਦਿਸ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ हादिस है ਜਾਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ हादिस है ਹਾਦਿਸ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਲਤ ਹੈ ਨਾ ਮੁਅੱਲਫ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਮੌਲਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁਰੱਕਬ ਹੈ मुरक्कब है ਉਹ ਤਾਂ मुरक्कब ਬੇ है ਬੈਤ ਹਾਦਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਲਤ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁਰੱਕਬ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਾਨ ਕੀ ਹੈ हादिस ਹਾਦਿਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਬੈਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਸਮਝਿਏ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜੈਸੇ जैसे बैत बैत जो है ये ਇਹ हादिस ਇੱਕ है ਆਸ਼ਾ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਵੀ ਬੈਤ ਹਾਦਿਸ हादिस ਹੈ है इसलिए कि ये मुरक्कब है ਮੁਰੱਕਬ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਇੱਲਤ ਕੀ ਹਾਦਿਸ ਹੋਣੇ ਦੀ मुरक्कब ਮੁਰੱਕਬ है। ਹੋਣਾ जी, मुरक्कब ਮੁਰੱਕਬ होने ਹੋਣਾ की इल्लत है। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਲਤ ਪਾਈ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ वो भी हादिस तो होगा चूंकि सारे जान में ये इल्लत है कि वो मुरक्कब है जी। लिहाजा सारा जान क्या है हादिस है जैसे हमारा कौल जैसे हमारा कौल अल आलम मुअल्लफुन अल आलम मुअल्लफुन लिहाजा वो हादिस है लिहाजा वो ये और तरीके ना असल है कि आलम हादिस है जी दलील की ये मुरक्कब है क्यास किस कीता है बैत उते बैत है। जैसा कि बैत जैसा कि बैत कि वो मुरक्कब है इसलिए वो हादिस है लिहाजा जान भी मुरक्कब है लिहाजा वो हादिस है जी जैसे हमारा कौल आलम मुरक्कब है पास वो हादिस है मिसल बैत के मिसल बैत शब 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 मुरक्कब है बस वो हादिस है जैसा कि बैत जग्गी जी वलहुम फी इस्बाति अन्नल अम्र अल मुश्तरक इल्लतुन लिल हुक्म अल मज़कूरी तुरुकुन अदीदतुन मज़कूरतुन फिल उसूली वल उम्दतु फीहा तरीक़ान। ये बेटा जी जब चौथा बाब आएगा ना उसूल शाशी में क्यास का वहाँ ये मसला ये सारा हम जो शुरू होने लगे ना जी ये उसूल फ़िक़ह के मसले शुरू होने लगे ने ते पढ़ने ने तो थोड़े थोड़े सौखे हो जाएंगे। ए देखो शरीयत ने हुक्म लगाया जी बे फलानी शय इंजे जी हलाल है या हराम है जी फुकहा ने उनकी इल्लत लभी जी इल्लत का हुक्म क्यों है जी या हुरमत का हुक्म क्यों है इल्लत लभी
ਕੀ ਲੱਭੀ इल्लत लबी उसका ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਲਤ ਲੱਭੀ ਦੀ ਏ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ ਫੁਕਹਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਜਤਹਿਦੀਨ ਕੋਲ जी ਜੋ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮਨਸੂਸ ਲੈ ਦੀ ਇੱਲਤ ਆ ਹੁਕਮ ਮਨਸੂਸ ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਸ ਉਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮਾਮੂਰ ਬੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮੂਰ ਬੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮ ਮਨਸੂਸ ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੱਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ इल्लत की है ਇਹਦੇ ਹਲਾਲ ਹੋਣੇ ਦੀ ਇੱਲਤ ਆਏ ਹਰਾਮ ਹੋਣੇ ਦੀ ਇੱਲਤ आए वो केड़ा थर्मामीटर है जी समझे पे हो जी तो वो कहते हैं कि उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं फ़ुक़हा मुजतहिदीन के पास लेकिन उम्दा उनमें दो तरीके हैं उम्दा उनमें दो तरीके हैं उम्दा उनमें दो तरीके हैं एक दावारान है जी एक सिबर व तकसीम है जी एक तवारान है एक सिबर सख्सी क्या क्या उस्ताद जी और लफ्ज़ बोले कल पढ़ांगे सिर्फ इन्होंने लफ्ज़ बोला तरा क्यों निकल गए जी एक तवारान एक सिबर तकसीम है सिबर व तकसीम जी के सिबर व तकसीम बस जी समझ आ गई जी जी। ये जी लफ्ज़ 1.5 लाइन पढ़ी ना भी वो क्या तरीका है जी जिससे कि पता चल जाए कि ये जो हुक्म है इस जुजी का जी। इसकी इल्लत ये इल्लत क्या है है? इल्लत लभने का की जी तरीका है मैं उनको पूछना है वो तो बोलना नहीं उन्हें जी वो तो हुक्म है मामूर बे इल्लत दी की है वो फिर कई दफ़ा होता है बशारे खुद इल्लत दस देने जी जिसले दस देन ना फिर किसी का इख्तलाफ नहीं होता दसी नहीं दसी नहीं फुकहा ने लभनी जी। उस लभने का की कानून उस लबने का कानून की कानून समझते हो जी और उनके लिए और उनके लिए किन के लिए हमारे उसूल के लिए इस उलमा उसूल तुमराद उसूल फ़िक़ह वाले चलो जी इस बात के साबित करने में इस बात के साबित करने कि में अमर मुश्तरक कि अमर मुश्तरक इल्लत है इल्लत है हुक्म मज़कूर की हुक्म मज़कूर की ए वेखो ना भी एंदा ते हुक्म लगा एक जी सानू की इल्लत लभी है जी ये इल्लत इंदे विच भी है जी लेकिन ये इल्लत इस हुक्म दी इल्लत ये होर कोई शय नहीं जी तां तो हुक्म उधर ले जाना है ना ये इल्लत ये ही है जी इल्लत यही है ये लभने वास्ते की तरीका है जी इंदे विच होर भी खूबियां हैं इस उंगल विच होर भी कई खूबियां हो सकदा वो इल्लत होवे जी ਜਿਹੜੀ ਲੱਭੀ ਏ ਇਹ ਇਲਤ ਏ ਇਹ ਕਿਉਂ ਏ ਉਹਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ दो तरीके ਇੱਕ दवारान का दुआ सिबर व ਸਿਬਰ व तकसीम इकट्ठा बोलना है कि तकसीम ऐसा बस तो उनके लिए तो चलो जी तरीके हैं मुख्तलिफ तरीके हैं तुरुक अदीदा मुख्तलिफ तरीके जो कि मज़कूर हैं जो कि मज़कूर हैं उसूल फ़िक़ह में उसूल फ़िक़ह में और उम्दा उनमें उम्दा उनमें उन तुरुक में दो तरीके हैं दो तरीके हैं जी और उलमाए उसूल के लिए तन समझाया सी भी छह चीज़ां विच रिबा सोहणिया दस्सिया इत्थे इल्लत की अनफियां होर इल्लत कड्डी शाफियां होर कड्डी मालकियां होर कड्डी किन्नियां चीज़ां साडे नज़दीक सूद है मालकियां शाफियां दे नज़दीक कोई नहीं क्योंकि इल्लत कोई नहीं पाई गई उन्हां दे नज़दीक है साडे नज़दीक कोई नहीं साडे नज़दीक इल्लत होर शै है जी और उलमाए उसूल के लिए इस शय के अन्ना तो वापस आने इस शय को साबित इस शय के इस शय के साबित करने में कि अमर मुश्तरक कि अमर वो मुश्तरक जेड़ा दोवां दे विच एक सिफत करला लिए इल्लत है इल्लत है हुक्म मज़कूर भी ए जेड़े ते कड्डी है ना इहो इस हुक्म मज़कूर दी की है इल्लत है इसको साबित करने में तुरुक तुरुक अदीदा हैं तुरुक अदीदा मुख्तलिफ तरीके हैं तरीके हैं जो कि जिक्र किए गए हैं जिक्र किए गए हैं उसूल फ़िक़ह में और उम्दा उनमें दो तरीके हैं उसूल के लिए इस शय के साबित करने में कि अमर मुश्तरक बे जेड़ा इस जुजी विच तो उस विच एक शय मुश्तरक लभी है मुख्तलिफ तरीके बे इल्लत है यही हुक्म मज़कूर की भी इहो इल्लत इहदी वजह तो हुक्म लगा है ये भी इहो इल्लत है ये इहो ही किवें पता लगदा है जी मुख्तलिफ तरीके हैं जो जिक्र किए गए मज़कूर हैं जो मज़कूर हैं उसूल में उसूल फ़िक़ह कह दो नस्लिया थले लिखे ही मज़कूर हैं उसूल फ़िक़ह में और उम्दा उनमें दो तरीके दो तरीके हुण आशा वेखो ध्यान कर
जान इस बात को कि तमसील नाम रखा गया इसका फुकहा के उर्फ में क्यास। फुकहा इसे तमसील नु की आंदे ने। और नाम ए वेखो एक एक वो जड़ा हुक्म लगा पे किसी शय उत्ते जड़ा हुक्म लगा है एक वो दूजी शय जिस ते लाना है जी। और नाम रखते हैं असल का मकीसल है। जी। ना भूल गया। नाम रखते हैं मकीसल का असल जिंदे उत्ते क्यास करना है ना जी। ਉਹਦਾ ਮਕੀਸਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਸਲ। ਅਸਲ ਮਕੀਸਲ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸ਼ਰਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਦ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮਕੀਸਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਵੀ। ਅਸਲ। और मकीस का नाम रखते हैं फरा जिन्हों क्यास करना है ना इनका की नाम रखते हैं फरा। फरा असल ते फरा कि असल वाला हुक्म फरा की तरफ लाना है यानी मकीस लय वाला हुक्म मकीस की तरफ लाना है असल वाला हुक्म फरा की तरफ लाना है। यानी मकीस मकीस अलह वाला हुक्म मकीस की तरफ लाना है। अहम मतलब है ये दो ना जी मकीस लय को असल कहते हैं जी। और मकीस को फरा कहते हैं। और ए जिस हुक्म लगा है ना ये मकीस लय वे ते असल है ते इंदा हुक्म इधर जाना है ना ये मकीस है ते फरा है ते आखना है कि मकीस लय वाला हुक्म मकीस की तरफ असल वाला हुक्म फरा की तरफ उस इल्लत की वजह से सुनिया जी। और माना जामे मुश्तरक जो है फुकहा उसका नाम रखते हैं इल्लत तै बन गया जे तीन शैयां मकीस लय मकीस इल्लत असल फरा इल्लत समझी जे रला ना दिया जे ये तो ये किन्ना दी लुगता ने फुकहा दियां उसूले फिका दियां किन्ना दियां उसूले फिका। एक ने इल्मे कलाम वाले जेड़े अकीदे साबित कर दें और मुतकल्लिमून नाम रखते हैं तमसील का इस्तिदलाल बिशाहिद अलल गायब। ये तीन लुगतां वखरियां जे मंतकी इहदा नाम रखते ने तमसील और जुजी नूं वेख के दूई जुजी हुक्म लाना मंतकी की नाम रखते ने तमसील ते फुकहा क्यास ते मुतकल्लिमून इस्तिदलाल शायद अलल गायब बेशाहिद नूं दलील बनाना गायब उत्ते ते है तो ही ना शाहिद नूं गायब उत्ते। हुण इत्थे वेखो उन्हां दे नज़दीक फरा गायब जी। असल शाहिद फरा गायब है और असल शायद है। हुण ओह जिहड़ी मिसाल दित्ती सी पस उनके कौल में अस्समाउ हादिसुन की अस्समाउ हादिसुन इसलिए कि ये भी मुतशक्किल है जैसे कि बैत होता है। जी। हुण बैत शाहिदी समा गायब गायब नज़र आउंदा है लेकिन भी ये भी जिहड़ा भी इनू साबित करना भी हादिस है और समा गायब और मुतशक्किल माना जामे में और हादिस हुक्मी समझ आई हूँ। लिहाजा ज़रूरी है तमसील में इन चार चीज़ों में इन चार चीजों में केड़ियां मकीस लय कीस ते इल्लत ते वो जड़ना भी हो भाई हुक्म नो मुतादी करना ते फुकहा नहीं मुखालफत करते मुतकल्लिमीन की मगर इस्तिलाहात में सिर्फ फुकहा दी इस्तिलाह की असल ते फरा असल इल्लत जी। ते मुतकल्लिमीन दे नज़दीक इस्तिदलाल भी शाहिद अल गायब ते मंतकियां दे नज़दीक तमसील बे एक जुज़ी वाला हुक्म दूजी जुज़ी ते लाना इल्लत दी वजह तो इल्लत दी समझ आ गई जे